السلام علیکم، خوش آمدید میرے چینل پہ جس کا نام ہے دا بیسٹ اردو ناول۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ اور آج جو میں آپ لوگوں کے ناول لے کے آئی ہوں وہ ذرا ہٹ کے ہے، ورنہ میرے چینل پہ زیادہ تر رونے دھونے والے ناول ہی ہوتے ہیں۔ تو آج میں ذرا فنی ٹائپ ناول لے کے آئی ہوں، وہ فیملی بیسڈ ہے اور آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اور میں تھوڑی سی نراش بھی ہوں کہ آپ میرے پہلے بہت اچھے میرے ویوز آتے تھے، آپ میرے ناول پڑھتے، لیکن اب میرا کوئی بھی ناول، کوئی بھی چینل نہیں پڑھتا۔ تو میں آپ سے وجہ پوچھنا چاہتی ہوں، اگر کچھ کمی ہے تو آپ مجھے لازمی بتائیں۔ تو چلیں اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ہائے کوئی ہے، ہائے بچا لو کوئی مجھے معصوم کو، ہائے خالہ جی بچا لیں آپ کا یتیم پلس مسکین بھانجا اللہ کو پیارا ہونے لگا ہے، ہائے کب کی آفت پیچھے پڑ گئی۔ عرب پورے گھر میں بھاگ رہا تھا، ساتھ اپنے دکھڑے رو رہا تھا۔ اس سے 2 سال چھوٹی ریشل، جو کہ ہائٹ میں اپنی عمر سے چھوٹی لگتی تھی، اپنے جوتے ہاتھ میں اٹھائے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ رک جا عربے، آج تو نہیں بچے گا، تیرا قیمہ بنا کر چوک والے چاچے رشیدے کی بلیوں کی دعوت کروں گی، رک جا۔ ریشل غصے سے بھری ننگے پاؤں اس کے پیچھے بھاگتی دانت پیس کے بولی۔ کچن میں کام کرتی ریا بھاگ کر باہر نکلی اور اپنی آفت کی پڑیا کو دیکھا، جو خود سے بڑے کزن کے پیچھے دونوں جوتے اٹھائے بھاگ رہی تھی۔ رشی رک جاؤ، کیا کر رہی ہو؟ ریا تھوڑا غصے میں بولی۔ ریا بہن آپ بیچ میں مت بولیں، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، مگر اس باندر کو آج میں نہیں چھوڑنا۔ ریشل ماں سے بولتے ہی سیڑھیوں کی جانب بھاگی جہاں عارب کھڑا تھا، مگر اس کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ہائے ہائے کرتا دادا جی کے کمرے میں بھاگا۔ ریا غش کھاتے بچی کہ اس کی بیٹی سے ریا بہن کہہ رہی ہے اور ساتھ یہ بھی کہ وہ عزت کرتی ہے، واہ بھائی کیا عزت ہے۔ ریا سر پکڑتی بیٹھ گئی کہ یا اللہ یہ کیا آفت نازل کر دی ہے۔ دادا جی پلیز بچا لیں، آپ پکا وعدہ آپ کے ساتھ شطرنج کھیلوں گا۔ عرب بھاگتا ہوا دھڑام سے دادا جی کے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا، جہاں دادا جی کرسی پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ عرب کے یوں آ کر چیخنے سے اپنی جگہ سے اچھلے اور سامنے دیکھا، جہاں اب عرب کرسی کے سائڈ سے ہوتا میز کی دوسری جانب کھڑا دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ عاطف کی انٹری پہ دادا بھی گھبرا گئے تھے۔ ان کی لاڈلی پوتی ہاتھ میں دونوں جوتے پکڑے عرب کے پیچھے بھاگی۔ وہ دونوں میز اور کرسی کے ساتھ گول گول چکر کاٹ رہے تھے۔ ارے میرا بچہ کیوں اتنے غصے میں ہے؟ دادا جی نے رشی کا ہاتھ پکڑ کر روکا، جو بھاگتے بھاگتے برا حال کر چکی تھی۔ میز کی ایک سائڈ عارب کھڑا تھا، ایک طرف ریشل، اور دونوں گہرے گہرے سانس لے رہے تھے۔ نہیں بچے گا میرے ہاتھوں، کالا کوا، رک۔ ریشل کا جیسے ہی سانس بحال ہوا، دونوں جوتے زمین پہ پھینکتی کسی کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر فوراً میز پر چڑھی اور عرب کے بال اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں لیتی زور زور سے ہلانے لگی۔ دادا جی بچائیں، ہائے میرے بال، ہائے مجھے کنجا کر دیا، اب کون مجھ سے شادی کرے گا؟ عرب زور زور سے چیخنے لگا۔ دادا جی بیچارے چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔ آخر 5 منٹ بعد وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوئے تو عرب بھاگ کر اس سے دور ہوا اور اپنا سر دبانے لگا۔ رشی اب بھی اسے گھور رہی تھی۔ دادا جی نے رشی کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے میز سے نیچے اتارا۔ ہوا کیا ہے بچے، بتاؤ؟ دادا جی نے رشی کا غصہ تھوڑا کم ہوتے دیکھا تو پوچھا۔ دادا جی یہ میرے کو بولتا ہے بونی، اور یہ بھی کہ جنی بڑی ہونے میں تم سے 20 سال لگائے، چڑیا کے بچے پیدا ہوتے ہی آنے سے ہوتے ہیں۔ رشی نے غصے سے بھرے ہوئے بتایا۔ اس کا بتانے کا انداز اور غصہ دیکھ کر دادا جی اور عارف کو بے اختیار ہنسی آئی، مگر چھپا گئے کہ اگر اب ہنسے تو دونوں کی خیر نہیں تھی۔ بہت بری بات ہے، عارف ایسے بولتا ہے، کوئی اتنی بڑی ہے تو ہے میری بیٹی، خود کو دیکھو ذرا، اتنے لمبے ہو گئے ہو، عقل پھر بھی نہیں آئی، اور میری رشی تو بہت سمجھدار ہے۔ دادا جی نے ہنسی چھپاتے ہوئے عارف کی کلاس لی، جس پہ وہ منہ بنا کر کھڑا ہو گیا، اور رشی فخر سے گردن اکڑا کر اسے دیکھنے لگی کہ دیکھا اور بولو۔
अच्छा अब मत लड़ना बुरी बात है। और ऋषि बच्चे चाय तो ला दो। दादा ने दोनों की लड़ाई खत्म कराई और ऋषि से बोले जो जी अच्छा कहती कमरे से बाहर निकल गई, मगर जाते हुए आरब को मुंह चढ़ाना नहीं भूली थी। इसके जाते ही दादाजी और आरब का कहका बुलंद हुआ और दोनों ऋषि के बताने का अंदाज याद करके हंसी से लूट फूट हो गए। सलमान शाह साहब और इरम बीबी के दो बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा यारम शाह, छोटा अहरम शाह और बेटी समिया शाह थी। इरम बीबी ने दोनों बेटों की शादी अपने भाई की बेटियों हरम और रिया से की थी और बेटी की शादी सलमान शाह ने अपनी बहन की बेटी खावर शाह से की। अल्लाह ने यारब शाह और हरम को 3 बेटों से नवाजा। सबसे बड़ा आजिब शाह, इससे छोटा शहजाब और सबसे छोटा आरिब शाह था। अहराम शाह और रिया की एक ही बेटी थी रीशल शाह, जिसमें इसके दादा की जान बसती थी। बाकी सब के लिए तो बस बलाल जान ही थी। समिया पप्पो और खावर शाह के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी जरताशा और छोटी हुमज शाह। सब में रीशल छोटी थी सबसे। जरताशा की मंगनी बचपन से आजिब से हुई थी और रीशल की शहजाब से, मगर रीशल और शाहजेब को अभी तक ये बात मालूम ना थी। आरिब 3 साल का था जब यारम शाह और हरम का एक हादसे में फौत हो गए। इनके बच्चे छोटे थे बहुत। शाहजेब 8 साल का था जबकि आजिब 12 साल का। इनकी वफात के बाद तीनों की परवरिश खाला और चाचू ने की। आजिब संजीदा मिजाज का था, मगर आरिब और रीशल बहुत अजीज थे उसे। इसके बाद शाहजेब बहुत गुस्से वाला था, इसी वजह से इसकी रीशल से नहीं बनती थी और रीशल उसे मिस्टर गुस्सीला कहकर बुलाती थी, जो घर में सबको मालूम था सिवाय शाहजेब के। रिया बहन कुछ खाने को दे दो, पेट में चूहे डांस कर करके अब बैठ गए हैं। ऋषि किचन में दाखिल होती बोली तो रिया ने गुस्से से इसको देखा। अभी 2 घंटे पहले ही तो सबके साथ मिलकर खाना खाया है तुमने, रिया ने तपे हुए लहजे में कहा। मगर ऋषि इन सुना करती फ्रिज खोले चेक करने लगी। आय हाय बहन, क्या है ना, सुबह उस चमगादड़ से लड़ने के बाद ना गुस्से में खाना खाया तो बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गई थी। सारा खाना शैतान के पेट में चला गया। ऋषि बिरयानी का डब्बा निकाले चम्मच लेकर बैठते ही स्टार्ट हो गई और साथ साथ रिया को बताया भी कि दूसरी बार क्यों खा रही है। उफ ऋषि, थोड़ी सी तमीज़ है तुम्हें, ये खाने का कौन सा तरीका है? प्लेट में खाना निकाल कर इंसानों की तरह खाओ। रिया ने उसे डब्बे में खाते देखकर गुस्से से कहा। रिया बहन, गुस्सा क्यों करती हो? आपका ही भला सोचा कि बर्तन कम गंदे होंगे ऐसे। ऋषि बिरयानी का आखिरी चम्मच मुंह में रखती आराम से उठी और फ्रिज से पानी की बोतल निकालती बोली, ये रुक जाओ ऋषि। इससे पहले रिया ऋषि को रोकती ऋषि बोतल मुंह से लगाकर पानी पीने लगी। एक नज़र रिया पे गई जो जूता उतार रही थी तो ऋषि ने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। रिया ने वहीं से निशाना लेकर जूता फेंका जो उड़ता हुआ सीधा जाके सामने वाले को लगा। आह! जोर से चीख की आवाज पे रिया और ऋषि दोनों शॉक्ड हुए। ही। ऋषि दांत निकालती बाहर भागी। ही। ऋषि हंसते हुए वहां से भाग गई। इसके हंसने पे रिया होश की दुनिया में लौटी और जल्दी से शाहजेब के पास आई, जो दोनों हाथों से अपनी नाक दबाए नीचे झुक गया था। शाह बेटा, ठीक हो ना? तुम दिखाओ मुझे, रिया ने इस परेशानी से उसे ऊपर करते पूछा, जिसका चेहरा दर्द से सुर्ख पड़ रहा था। रिया के जूता फेंकते ही ऋषि नीचे हुई तो जूता सामने से आते शाहजेब की नाक पे गोली की तरह लगा, जिससे एक पल को तो उससे ज़मीन आसमान घूमते हुए महसूस हुए। जी ठीक हूँ, शाहजेब ऊपर होता बमुश्किल बोला, जबकि नाक सूज गई थी और चेहरा और सुर्ख जामनी रंग के निशान बन गए थे। रिया इसका चेहरा देखकर बहुत शर्मिंदा हुई और ऋषि पे बेइंतहा का गुस्सा आया। ऋषि सामने आ, मेरे तेरी हड्डियां ना तोड़ी तो कहना। दिल ही दिल में ऋषि का कीमा बनाती रिया ने शाहजेब को कुर्सी पे बिठाया और उसके लिए दूध बॉयल करने लगी। खिड़की के साथ छुप कर खड़ी ऋषि शाहजेब की सूजी हुई नाक देखकर हंसी से लूट फूट हो गई, क्योंकि शाहजेब की नाक टमाटर की तरह सुर्ख और सूजी हुई थी। रिया ने खिड़की के बाहर खी की आवाज़ सुनी तो पीछे मुड़कर देखा। ऋषि को देखते ही वो दूध शाहजेब के आगे रखती बाहर की जानिब खतरनाक
ताकतवर से बड़ी। ओ मारे गए। ऋषि रिया को देखते ही पास पड़ी गुलैल उठाई और घर से बाहर भाग गई, क्योंकि आज तो दादा भी किसी काम से आरब के साथ लेकर घर से बाहर गए थे। उसे बचाने वाला कोई ना था, और जान जितना रिया को इस पे गुस्सा था, आज तो वो इसका कीमा बना कर ही दम लेती। ला 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 हो ला ला। ऋषि हाथ में गुलैल पकड़े दरख्तों के साथ साथ चलती हाथ हवा में लहरा रही थी। मगन से चलती वो कुछ देर बाद जमीन से पत्थर उठाती और गुलैल से दूर हवा में उछाल देती। अपने आप में मगन उसे जमीन से पत्थर उठाया और सामने घने दरख्त में दे मारा। चीख की आवाज पे ऋषि एकदम उछली। आनी मामा जी बचाओ, भूत। जब दरख्त से सिर्फ आवाज आई मगर कोई नजर ना आया तो ऋषि उल्टे कदम वापस भागती चलाई। दरख्त में छुप कर बैठा है शाम भी भूत का नाम सुनते ही फौरन निकल कर भागा, जो पिछले आधे घंटे से अब्बा की मार से बचने के लिए यहाँ छुप कर बैठा था, मगर भूत के डर से भागा। बचाओ बचाओ, कोई है। ऋषि जोर जोर से चिल्लाती भाग रही थी। जब पीछे आते शाम की स्पीड इसने देखी तो और जोर से चिल्लाने लगी। पीछे मुड़ के चिल्लाते वो भागे जा रही थी। जब वो पीछे देखकर शाम को भूत समझ के चिल्लाती तो शाम भी पीछे मुड़कर देखता और ज्यादा तेज भागता कि भूत उसे तो नजर नहीं आ रहा था, कहीं उस तक पहुंच ही ना गया हो। देखो भूत जी किस्में, आज के बाद मैं किसी नु भी तंग नहीं करना। अल्लाह पाक जी का वादा, आरिफ को भी बिला वजह नहीं तंग करूंगी। भूत जी मुझे मत खाना प्लीज। ऋषि रोते रोते भाग रही थी और साथ भूत की मिन्नतें भी कर रही थी। इसको रोता देखकर हिसाम मजीद डर गया कि पता नहीं कितना कोई डरावना भूत है, और अपनी साइड और तेज की, जिस पे ऋषि जोर जोर से रोने लगी। भूत जी मैं बहुत कड़वी हूँ, कसमें नमक बहुत खाती हूँ और बचपन में मिट्टी भी खाती थी। मेरा खून बहुत गंदा है, भूत जी प्लीज। ऋषि ने जब महसूस किया एहसान इसके पास पहुंचने वाला है तो इसका दिल खराब करने की कोशिश करने लगी कि वो ना खाए। मामा। पीछे देखते भागते भागते वो मुंह के बल गिरी और जोर से चिल्लाई। इसके गिरते ही हिसाम इस तक पहुंच गया और उसको खड़ा करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया ताकि भाग सके, मगर ऋषि जो से भूत समझती जोर जोर से चिल्ला रही थी। इसके हाथ आगे करते ही ऋषि की जान निकली कि वो खाने वाला है। अभी इसके लंबे लंबे दांत बरामद होंगे और शक्ल बदल जाएगी। आंखों में खून आ जाएगा। खौफनाक शक्ल जहन में आती है। जब ऋषि को कुछ समझ ना आया तो शाम का बड़ा हुआ हाथ पकड़ कर अपने दांत गाड़ दिए। ऋषि ने इतनी जोर से काटा कि शाम की दिल खराश चीख बरामद हुई और झटके से दूर होकर ऋषि को घूरने लगा। देखो भूत जी मैं तुम्हें हजम नहीं होंगी, और मैं तो हूँ भी छोटी सी, तुम्हारा पेट कहाँ भरेगा। ऋषि ने उसे गुस्से में देखकर रोते हुए कहा तो शाम को 100 वाट का झटका लगा, यानी वो उसे भूत समझ रही थी और इतनी देर से भगा रही थी। मैं भूत नहीं हूँ, हिसाम ने गुस्से से कहा। तो तू दरख्त में तुम नहीं थे? ऋषि ने आंखें बाहर निकालते हैरत से पूछा। हाँ वहाँ मैं था, मगर मैं भूत नहीं हूँ। वहाँ तो अब्बा से चुप के बैठा था, तो फिर भागे क्यों? ऋषि ने खड़े होते दोनों हाथ कमर पर रखते पूछा। वो तो मैं समझा सच्ची का भूत आ गया है, एहसाम ने बताया। कि कुत्ता। ऋषि ने शाम से नजरें हटाते पीछे देखा और भागते हुए बोली। हाँ बेवकूफ़ समझा है क्या जो हर बार भगाओगी तो मैं पागलों की तरह भागता जाऊंगा? मैं नहीं डरता कुत्ते से। शाम ने उसके भागते ही पीछे से हांग लगाई और गर्दन इकड़ा कर बोला, मगर पीछे देखते ही उसकी छक्के छूट गए। ओह तेरी, ये तो सच्ची का है। अब्बा जी बचाओ। एहसान अपने पीछे एक बड़े से कुत्ते को देखकर चिल्लाता हुआ भागा जो फुल स्पीड से आ रहा था। दादाजी बचाएं प्लीज। ऋषि भागते हुए घर के पास पहुंची। सामने गाड़ी से उतरते दादाजी को देखते ही भागकर इनके पास आई। दादाजी और आरब परेशानी से इसकी तरफ बढ़े। इनके पास पहुंचते ही ऋषि दादाजी के गले लग गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। क्या हुआ बच्चे बताओ, दादाजी ने परेशानी से पूछा तो ऋषि ने पीछे की जानिब हाथ से इशारा किया। दादाजी और आरब ने इसके हाथ के इशारे की तरफ देखा जहाँ एक लड़का भाग के आ रहा था। इसको देखते ही दादाजी और आरब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बगैर सोचे आरब आगे बढ़ा
حسام کی کلائی مروڑ کے کمر سے لگائی اور اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ وہ جو ان کو دیکھ کر بھاگ کے ان کے پاس آیا تھا تاکہ کتے سے بچا سکے، اچانک مار پہ بکھلا گیا اور اپنے آپ کو عارب کے مضبوط ہاتھوں سے بچانے لگا، جس کا ایک ایک تھپڑ اس کو دل میں تاریں دکھا رہا تھا۔ رک جاؤ عاربے، میری بات تو سن لو، پوری سست ہیرو۔ حسام کی چیخوں پہ رشی نے مڑ کر دیکھا۔ عارب حسام کو مار رہا تھا تو ان کا غلط مطلب سمجھتے فوراً آگے بڑھ کر عارب کو روکا۔ حسام کی جان چھوٹتے ہی وہ 10 قدم دور کھڑا ہوا۔ عارب سے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کیا سنوں؟ ہاں یہ؟ عارب غصے سے بولا اور دوبارہ حسام کی جانب بڑھا، جو اسے دیکھتے ہی الٹے قدم پیچھے ہوا۔ عاربے بات سنو، اس نے کچھ نہیں کیا، اندھے، وہ کتا پیچھے لگا تھا۔ رشی نے ایک ہی سانس میں بات کرتے دور اشارہ کیا جہاں کتا انہی کی طرف آ رہا تھا، مگر عاربے کو نیچے جھکتا دیکھ کر مڑ کے بھاگا۔ عاربے نے شرمندگی سے حسام کو دیکھا جو اپنی کلائی دبا رہا تھا، جس پہ تھوڑی دیر پہلے رشی نے کاٹا تھا، اور رہی سے کسر عارب نے دبا کر پوری کر دی تھی۔ سوری یار، وہ میں۔ عارب حسام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا، مگر اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے۔ عجیب خاندان ہے، پہلے یہ بھونی بھوت بنا کر بھگاتی رہی، پھر وہ کتے کا بچہ پیچھے پڑ گیا، اور اب رہی سے کسر تم نے پوری کر دی۔ اس سے اچھا تھا ابا سے 2 تھپڑ کھا لیتا، نہ اتنا بھاگنا پڑتا، نہ چڑیل کاٹتی، اور نہ اتنے زور سے تھپڑ کھانے پڑتے۔ سارے دانت ٹوٹ کے حلق میں چبھ رہے ہیں۔ اس سے اچھا تھا کتا کاٹ لیتا، اتنے زور سے وہ بھی نہ کاٹتا۔ حسام نے روتے ہوئے اپنا غصہ نکالا، جس کی باتوں پہ عارب اور دادا جی نے بڑی مشکل سے ہنسی روکی، جبکہ عرشی اپنے لیے بونی اور چڑیل کا لقب سن کر تپ گئی۔ رک جا کالے موٹے جن، خود کو دیکھا ہے ٹوٹے ہوئے ٹرک کی شکل والے، تیرا تو قیمہ بنا کر اسی کتے کی دعوت کروں گی، رک جا۔ رشی بازو فولڈ کرتی اس کی طرف بڑھی، مگر دادا جی نے اسے روک لیا، جبکہ حسام اس کے خطرناک تور دیکھ کر وہاں سے دوڑ لگا دی۔ دادا جی اور عرب نے حسام کو بھاگتے دیکھا تو فلک شباک کہکا لگایا اور رشی کو زبردستی پکڑ کر گھر کے اندر لائے، جو حسام کے پیچھے جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ہاں 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 ہاں۔ دادا جی کے کمرے میں بیٹھے عارب اور دادا جی رشی کی کہانی سن کر پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی جا رہے تھے۔ لائک سیریسلی رشی، تمہیں بھوت سے ڈر لگتا ہے، جبکہ بھوت کا بھی تمہارے بارے میں یہی خیال ہوگا کہ کیا ڈرونی چیز دیکھ لی۔ ہاں 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 ہاں، عارب نے ہنستے ہوئے رشی سے کہا، جو اس کی بات سنتی غصے میں آئی اور اس کی جانب بڑھی۔ رک بتاتی ہوں بھوت کے نانے۔ اسے دیکھتی ہی عارب نے باہر کی جانب دوڑ لگائی تو رشی بھی پیچھے بھاگی۔ ان دونوں کو لڑتا دیکھ کر دادا جی پھر ہنسے اور اپنے بچوں کو ایسی خوش رہنے کی دعا دی، کیونکہ ان کے گھر کی رونق رشی اور عارب سے ہی تو تھی۔ ہائے ہائے ہائے، ریا جو شاہزیب کے کمرے میں اس کی طبیعت پوچھنے جا رہی تھی، رشک کی کمرے سے آتی اونچی اونچی ہائے ہائے کی آواز پہ پریشان سی اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہی وہ اندر بڑھی، جہاں رشی بڑی سی چادر کے ایک کونے سے سر باندھے بیڈ کے درمیان میں بیٹھی دونوں ہاتھوں سے سر دبا رہی تھی اور ساتھ زور زور سے ہائے ہائے کر رہی تھی۔ سر پہ باندھی چادر باقی دونوں گھٹنوں پہ رکھے ماتھا ٹکایا ہوا تھا۔ رشی، کیا ہوا بیٹا؟ ریا پریشان سی آگے بڑھی۔ ہائے ریا بہن، نہ بابا نہ، وہی رک جائیں گے۔ ریا بہن، نہ بابا نہ، وہی رک جائیں، آگے مت آئیں۔ ہائے میں ٹرنے لگی ہوں، میرا اب ویزا لگ گیا ہے۔ رشی ہاتھ سے ریا کو روکتے چھلانگ لگا کر بیڈ کی دوسری سائڈ اتری۔ کیا فضول بولتی جا رہی ہو رشی؟ اس کی باتیں سن کر ریا کا دل زور سے دھڑکا اور تھوڑا غصے سے بولی، کرونا نام تو سنا ہوگا نا ریا بہن، اسی سے میری دعا سلام ہو گئی ہے، اور اس نے میں انی چنگی لگی کہ وہ میرے پاس ہی رہ گیا۔ ہائے، رشی نے سر پکڑے کہا تو ریا پریشانی سے آگے بڑھی۔ کیا ہوا بچے؟ اس کی ہائے ہائے سن کر دادا اور عرب بھی کمرے میں آئے، جہاں رشی چادر کے
एक कोने से सर बांधे खड़ी थी, बाकी पूरी चादर जमीन को सजदा कर रही थी। सर से चादर का कपड़ा लटक कर आंखों पे आ गया था और वो सर थोड़ा पीछे को किए सबको देखती बिल्कुल अजूबा लग रही थी। जब इसकी हालत देखकर आरब को हंसी आई। दादा जी करो ना। ऋषि दादा को देखते ही रोने लगी और इसके रोते दादा परेशानी से इसकी जाने बढ़े, जबकि रिया तो बेटी को देखते ही बाकायदा रोने लगी थी। दादाजी और रिया इसे लिए हॉस्पिटल गए। सारे रास्ते ऋषि की हाय हाय सुनकर आरब के कान पक गए। डॉक्टर क्या हुआ हमारी बच्ची को? दादा ने ऋषि का चेकअप करा के कुछ लिखते डॉक्टर से पूछा। जी बस बीपी लो है, थोड़ा इंजेक्शन से आराम आ जाएगा और घर जाके ये गोलियां लिख दी हैं, ये खाने के बाद दे दे, आराम आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुनते हाँ बाकी सब रिलैक्स हुए थे। वहीं इंजेक्शन का नाम सुनते ही ऋषि की आंखें बाहर निकली। नहीं नहीं डॉक्टर जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो गाड़ी में आते हुए हवा लगी ना, दिमाग की रगें खुल गई हैं। ही ऋषि जबरदस्ती हंसती, जिसकी हालत देखकर दादा और हंसे। वहीं रिया ने घूर कर ऋषि को देखा और मुंह बंद रखने का कहा, मगर इस पर असर कहाँ होना था। डॉक्टर देखो, मेरे को टीका ना लगाना, गरीब की बद्दुआ लगेगी। ऋषि ने डॉक्टर के पास उठाया इंजेक्शन देखकर उंगली उठाते वार्न किया तो डॉक्टर ने घूरकर उस छोटे ड्रामे को देखा जो समझ से बाहर, बिल्कुल बाहर था। हाँ अल्लाह करे नाले में गिरो मोटे डॉक्टर। जब मोबाइल चार्जिंग पे लगाओ तो बिजली चली जाए, दूध लेने जाओ तो दही मिले और बीवी बालों से पकड़ कर दिमाग के पोजिट सेट करे। बांदर जे ऋषि जो दादाजी के बुलाने पे इनकी तरफ मुतवज्जो हुई थी, डॉक्टर ने जल्दी से बाजू पे टीका लगा दिया, जिसके साथ ही ऋषि का स्पीकर खुल गया। डॉक्टर हैरान से इस चलती टेप रिकॉर्डर को देख रहा था जो पता नहीं कौन सी बद्दुआएं दे रही थी। दादा आरब के लिए हंसी रोकना मुश्किल हो गया था। रिया ऋषि का बाजू पकड़ते जबरदस्ती बाहर खींच लाई। देखना डॉक्टर, तुम्हारी बीवी जूतियों से मारेगी। ऋषि ने रिया के साथ खींचते हुए हाँक लगाई तो बाहर बैठे मरीज भी हैरानी से देखने लगे। फीस दे दे आरिफ भी जल्दी से दादाजी को लेकर बाहर निकला। बेटा क्या हुआ है इस बच्ची को? गाड़ी के पास पहुंचते एक औरत ने आरिफ से पूछा। जी वो दिमागी मसला है, कभी कभी दौरा पड़ जाता है। आरिफ ने मस्कीन सी शक्ल बनाकर कहा तो उस औरत ने हमदर्दी से ऋषि को देखा जो आरब के झूठ पे उसे घूर रही थी। अल्लाह पाक रहम करे, कितनी प्यारी बच्ची है, औरत हमदर्दी से कहती अस्पताल के अंदर चली गई। इसकी बात पे अरब हंसते हुए पीछे मुड़ा। रुक जा बांदर, अब दौरा पड़ा ही गया है तो तुझे ऊपर भेज दूं, धरती से बोझ कम होगा। ऋषि रिया से हाथ छुड़वाती आरब की तरफ दौड़ी। रुक जाओ ऋषि। रिया ने ऋषि का बाजू पकड़ के जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया, जबकि आरब इसके इरादे देखकर दादाजी के पीछे छुप गया। उसकी गाड़ी में बैठते ही आरिफ ने ड्राइविंग सीट संभाली। सारे रास्ते आरिफ ऋषि को तंग करता आया और दादाजी इनकी बातों से लुत्फ अंदोज होते रहे थे। शाम तक ऋषि की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी मगर वो अब भी मुंह फुलाकर बैठी थी। ऋषि मेरा बच्चा, चलो खाना खा लो। दादाजी ने ज़बरदस्ती ऋषि को खाने की मेज़ पर लाए तो उसे देखते ही आरब ने ज़बान चढ़ाई। देखो आरबे भूत, अब ऋषि तुम्हारे साथ करती क्या है, पता सबर कर जा ज़रा। ऋषि ने दिल में आरब को मुखातिब करते हुए कहा और बैठकर खाना खाने लगी। अस्सलाम वालेकुम। शाहजेब और आजिब ने आते ही सबको सलाम किया और अपनी अपनी सीट संभाली। वालेकुम अस्सलाम। रिया ने सलाम का जवाब देती इन दोनों के सामने खाना रखा। शाह बेटा, ये तुम्हें नाक पे क्या हुआ है? दादाजी ने शाहजेब से पूछा जिसके नाक पर पट्टी बंधी थी। जी वो छोटी सी चोट लग गई थी, शाहजेब ने जवाब दिया और खाना प्लेट में निकालने लगा। वही तो पूछा है, कैसे लगी चोट? दादाजी ने ज़रा जोर से कहा। अरे मैं बताती हूँ ना दादाजी। ऋषि जो कब से खामोश बैठी शाहजेब के टालने पर चिढ़कर बोली। तुम? दादाजी नासमझी से ऋषि को देखते हुए बोले। जी मैं, वो क्या है ना, मेरे पापा जी की खातून मुझ पर हमला करने का इरादा रखती थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागी, मगर रिया बहन का उड़ता हुआ मज़ैल जूता मेरे पीछे मेरी कमर पर भूसा देने भागा, मगर मैं झुक गई और मज़ैल जी उड़ते हुए सामने से आते शाह भाई के मुंह पर भूसा देने भागा।
और सीधा नाक पे बूसा देख गया। जो शाज भाई की नाक शरीफ को गवारा ना हुआ और वो अपनी शान में गुस्ताखी लगे समझते हुए पप्पो की तरह मुंह सुर्ख किए बैठेगी निकाब करके। ऋषि की तकरीर सुनते दादाजी आजेब आरेब का हंस हंस के बुरा हाल हो गया, जाके शाहजेब गुस्से से इस पटाखा को घूर कर रह गया। रिया की खतरनाक तेवर देखकर ऋषि ने आखिरी नेवाला मुंह में रखते कमरे की तरफ दौड़ लगाई। सब ने हंसते हुए इसकी स्पीड देखी। अच्छा बच्चे, तुम क्या समझी ऋषि से पंगा लोगे और तुम बच जाओगे? अभी बताती हूँ। सबके सोते ही ऋषि आरब के कमरे में गई और आस्था से दरवाज़ा खोला, जहाँ सामने आरब सोया हुआ था। आरब की नींद बहुत पक्की थी। ऋषि ने इसके पास आते ही हाथ में पकड़ा पैकेट दराज पे रखा और आरब के मुंह पे रंग वाला ब्रश लेकर पेंटिंग करनी शुरू कर दी। ही अपना काम मुकम्मल करते इसकी अजीब सी शक्ल देखकर ऋषि हंसने लगी। सुर्ख काले सफ़ेद रंग की पेंटिंग करते उसने आरब के मुंह पे अपने हाथ की सफाई दिखाई, जो बस गुजारा लायक ही थी। सुर्ख रंग आंखों पे करते उसने भूतनुमा बना दिया था। पूरे को काफ के देव लग रहे हो, ऋषि ने हंसते हुए कहा और सारा सामान उठाती कमरे से बाहर निकल गई। अपने कमरे में आके उसने हाथ धोए। अब पता चलेगा, उठो सुबह तुम। ऋषि तस्वर में आरिफ का रद्दमल देखती मुस्कुराते हुए सो गई। भूत भूत। आरिफ नींद से बेदार हुआ तो दोनों हाथों से आंखें रगड़ी। रात से हुआ रंग अब सूख गया था। आरिफ काले रंग की शर्ट ट्राउजर में था। वॉशरूम में जाते हुए इसकी नज़र शीशे में पड़ी। खौफनाक से देव जिसके दांत थोड़ी तक थे तो देखते ही आरिफ की चीख निकली। वो भाग के कमरे से बाहर निकला। रिया जो इसकी चीख सुनकर इसके कमरे में आ रही थी, सामने से आते भूत को देखकर डर गई। भूत चीखता हुआ इसके पास आया तो उसे पता चला वो भूत नहीं है बल्कि आरिफ था। रिया उसे देखती हंसने लगी तो आरिफ ने नासमझी से इन्हें देखा और सामने लगे शीशे में देखते ही इसको समझ लग गई कि इसकी शक्ल मुबारक को भूत के दर्शन करा दिया गया है और ये काम सिवाय एक हस्ती के और कोई नहीं कर सकता था। ऋषि। आरब ने ऋषि का नाम दांतों में चबाया और कमरे में भागा ताकि मुंह धो सके। हा। सब इसकी हालत देखकर हंस रहे थे। आजिब और शाहजेब की हंसी रुक ही नहीं रही थी। दरवाजे के पीछे खड़ी ऋषि भी आरब की हालत देखकर हंसी से लूट-फूट हो गई। बहुत बार मुंह धोने से भी रंग सारा ना उतरा तो आरिफ दांत पीस कर रह गया। ऋषि बच्चे, अब तुम्हारी बारी, तैयार रहना। आरिफ ने दिमाग में प्लान बनाते मुस्कुराया। आज आरिफ और शाहजेब दोनों घर थे, बाहर जा नहीं सकते थे क्योंकि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं थे और ये सारी करमात मिस ऋषि की बदौलत थी। ऋषि की बच्ची, अब देखो मैं करता क्या हूँ चुड़ैल। आरिफ कमरे में चक्कर काटता दांत पीस के बोला। आज इसका टेस्ट था बहुत इम्पोर्टेंट, मगर ऋषि के मजाक की वजह से अब वो जा नहीं सकता था। इसके मुंह पर अभी भी रंग लगा हुआ था। आरिफ यार मेरा एक काम तो कर दे। शाहजेब कमरे में आते बोला। भाई घर के अंदर का काम हो तब बाहर, मैं नहीं जा रहा। आरिफ हाथ हिलाकर बोला तो शाहजेब ने गुस्से से पाँव पटका। घर के अंदर क्या, तुम्हारे सर पे कपड़ा बांध के कोनों से जाले उतारने हैं मैंने। शाहजेब गुस्से में बोलता बाहर निकल गया, जबकि इसकी बात समझ आती ही आरिफ सदमे से शीशे के सामने आया। इतना भी लंबा नहीं हूँ मैं। शीशे में अपना जायजा लेते आरिफ बुरा सा मुंह बनाकर बोला, मगर नज़र अपनी शक्ल पर जाते ही ऋषि याद आई, जिससे बदला लेने के लिए ये प्लान बना रहा था। गुड याहू, अब बच के दिखाओ पुत्र। प्लान बनाती वो खुशी से उछला और मुंह पे हाथ फेरते ऋषि को मुखातिब किया। ऋषि कब तक यहाँ खड़े रहेगी? मान जा बहन, चल रक्शे पे चले जाते हैं। हरम जो ऋषि की दोस्त बनी थी कॉलेज में, इसके साथ कॉलेज से छुट्टी के बाद बाहर खड़ी थी क्योंकि ऋषि मैडम को आज बस पे घर जाने का शौक चढ़ा था। नहीं, आज तो हम बस पर ही जाएंगे, ऋषि ने ज़िद्दी लहजे में कहा और सामने से आती बस की तरफ बढ़ी, जहाँ बस रुकते ही बहुत सी लड़कियाँ
बस में चढ़ने लगी थी। हरम ने भी बस को देख कर शुक्र का कलमा अदा किया। पिछले आधे घंटे से खड़े हो के इसकी टांगें दुख रही थी। ऋषि ने 2 दफ़ा बस पे चढ़ने की कोशिश की, मगर लड़कियों के झुरमुट ने पीछे धकेल दिया। रुको, अभी बताती हूँ। ऋषि सुर्ख पड़ते चेहरे से पास खड़ी लड़कियों को दोनों बाजुओं से पीछे करती दरमियान से जगह बनाती ऊपर चढ़ी। मगर रुको। ऋषि जो बस के दरवाजे तक पहुंच के ऊपर चढ़ी, इसके पीछे खड़ी 2 हट्टी कटी लड़कियों ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर बच्चों की तरह हवा में लहराते पीछे खड़ा किया, जहां से वो जगह बनाती आगे बढ़ी थी, और खुद बस में चढ़ गई। साथ ही बस चल पड़ी। हा 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 हा। ऋषि की हालत देखकर हरम हंसते हुए फुटपाथ पर बैठ गई। हंस हंस के उसके पेट में दर्द हुआ। लगा इन दोनों लड़कियों ने ऋषि को बच्चे की तरह उठा के नीचे खड़ा कर दिया था। दांत अंदर करो वरना सारे हलक में उतार दूंगी। हरम को कब से हंसते हुए देखकर ऋषि दांत पीसते बोली तो हरम मुंह पर हाथ रखे हंसी रोकने लगी। अब हम घोड़ा गाड़ी पे जाएंगे बस। ऋषि ने दूर से आते घोड़ा गाड़ी को देखते हुए कहा तो हरम सर पकड़ कर बैठ गई। ऋषि, आंखों का इलाज करवाओ। अंधी, ये घोड़ा नहीं गधा है। हरम दांत पीस कर बोली, घोड़ा है। ऋषि उसे घूरते गुस्से से बोली, उफ मेरे अल्लाह, ये गौर से देखो। हरम ने इसका बाजू पकड़कर सामने मोड़ते हुए गुस्से से कहा, वो वाकई गधा गाड़ी थी जिस पे कोई चीज़ बोरियों में बंद करके लादी गई थी। ये घोड़ा ही है, शायद काफ़ी टाइम से नहाया नहीं हो तब गधा लग रहा है। ऋषि सामने देखते हुए मनमनाते हुए बोली तो हरम ने हैरत से उसे देखा जो गधे को घोड़ा कह रही थी कि ना नहाने की वजह से गधा लग रहा है। चलो। उससे पहले कि ऋषि कोई बोंगी मारती, हरम ने जबरदस्ती इसका हाथ पकड़ा। सामने से आते हुए राक्षस को रोकती इसमें बैठी। ऋषि भी मुंह बनाती बैठ गई थी। किराया तुम दोगी, मैं नहीं। ऋषि रक्शे में बैठते ही हरम के कान में आस्था से बोली, अच्छा ना। हरम दांत पीसती बोली और बैग से पैसे निकालने लगी। शिट यार, नहीं। हरम परेशानी से बोली तो ऋषि ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ, मेरे पैसे कहीं गिर गए हैं? हरम ने रोने वाली शक्ल बना के कहा तो ऋषि को झटका लगा, क्योंकि इसके पास जितने पैसे थे वो चॉकलेट खरीद चुकी थी। अब क्या करेंगे? हरम ने ऋषि से पूछा, मगर आवाज़ ऐसा थी, रुको कुछ सोचती हूँ। ऋषि ने गाल पे उंगली रखते हुए कहा तो हरम ने नासमझी से उसे देखा। आइडिया। ऋषि ने खुशी से कहा तो हरम ने उसे देखा। रुको। ऋषि ने उसे चुप रहने का इशारा किया। भाई जरा ये आगे जो दर्जी की दुकान है इसके पास रक्षा रोकना। ऋषि ने कहा तो ड्राइवर ने सर हिलाकर कहा, जी ठीक है। रिक्शा रोकते ही ऋषि ने बाहर का जायजा लिया। ओहो, यहाँ तो इतने मर्द खड़े हैं, अब क्या करें? आज कपड़े भी लेके जाना ज़रूरी है। अल्लाह किसी लड़की को ऐसी आजमाइश में ना डाले। बाबा इस शहर होते तो हम ये लड़कों वाले काम ना कर रही होती। ऋषि ने मसनूई आंसू साफ करते हुए कहा तो हरम ने इस ड्रामे को देखते अपनी हंसी रोकी, जिस शक्ल से इस वक्त वाकई मस्कीन लग रही थी। बाजी क्या काम है, आप मुझे बताएं, मैं कर देता हूँ। रिक्शा ड्राइवर को इस छोटी सी लड़की पे बहुत तरस आया। हाय भाई, आज भी आप जैसे लोगों से ही दुनिया आबाद है। ऋषि ने मक्खन लगाते हुए कहा तो हरम को हंसी रोकना मुश्किल लगा। भाई इस दुकान पे हमारे कपड़े हैं जो आज ही हमें चाहिए, हाजी गफूर के नाम से। हमने पैसे दे दिए हैं, बस कपड़े लाने हैं। ऋषि मस्कीन सी शक्ल बनाती बोली तो ड्राइवर सर हिलाता बाहर गया। मैं अभी ले आता हूँ। वो बोलते ही दुकान के अंदर चला गया। इसके जाते ही ऋषि ने हरम का हाथ पकड़ा और रिक्शे से उतरते ही दौड़ लगा दी। इनका घर थोड़ा ही दूर था और इस दुकान से भागते हुए ऋषि अपने घर की गली में मुड़ गई और हरम हंसते हुए हाथ बाएं में हिलाती अपने घर की तरफ दौड़ी। बाजी, वो दुकान वाला कह रहा है कि हाजी गफूर के नाम से यहाँ कोई कपड़े नहीं है, याद करें किसी और नाम। रिक्शे वाला अपनी धुन में बोलता हुआ सामने आया तो वहाँ बाजी तो क्या, हाजियों के भूत भी नहीं थे। सदमे से वो आसपास देखता रहा। वो आफत उसे बेवकूफ़ बनाकर निकल गई थी। कोई नहीं, देख लूँगा तुम दोनों को। वो सर झटकता रिक्शा लेकर वापस मुड़ गया। ऋषि ने घर में दाखिल होते ही अंदर से कुंडी लगाई और घुटनों पर हाथ रख कर लंबे लंबे सांस लेने लगी। क्या हुआ ऋषि, क्या कारनामा करके आई हो अब? उसे घुटनों पर झुका देख के रिया की छुट्टी ही इसने कुछ गलत होने का इशारा दिया। कुछ नहीं करके आई मैं, रिया बहन। हर वक्त शक मत किया करो। आप
आप कुत्ता पीछे लग गया था, उसी से भाग कर आई हूँ, ऋषि ने सीधे होते हुए कहा और अपना बैग उठाती कमरे में चली गई। रिया को इसकी बात पे यकीन तो ना आया, मगर फिर भी खामोश होती किचन में गई। उफ, शुक्र है बच गई। कमरे में आती ही ऋषि ने बैग बेड पे फेंका और खुद भी गिरने वाले अंदाज में लेटते हुए बोली, क्यों मैडम, अब किस मासूम का जीना हराम करके तशरीफ ला रही हैं? आरब ने कमरे में आती इसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए मीठा सा तंज किया। ऋषि फौरन उठ बैठी। आज टेस्ट था, वो नहीं हुआ, इसी की बात कर रही हूँ। एक तो इस घर में सबको मैं मासूम मशकूक ही लगती हूँ, ऋषि ने खुफकी से कहा, और ये तुम क्या डंगरों की तरह मुंह उठा के बिना इजाज़त कमरे में टपक पड़ते हो? आरिफ को अपनी तरह मशकूक नज़रों से देखते ऋषि ने गड़बड़ा के गुस्से में उससे कहा, अच्छा डंगरों की तरह हूँ। आरिफ एक एक लफ्ज़ को खींच के बोला तो ऋषि ने नासमझी में इसकी तरफ देखा। तुम क्या रात मेरे कमरे में इजाज़तनामा लेके अपने गंदे मेंढक जैसे हाथों से मेरा मेकअप करने आई थी? आरब के बोलते ही ऋषि ने सदमे से अपने हाथ देखे जो बहुत खूबसूरत नरम से थे, और आरब गंदे मेंढक बोल रहा था, रुक अरबे, तुझे इन्हीं हाथों से ऊपर भेजती हूँ। होश में आते ही ऋषि चिल्लाते हुए इसके पीछे भागी, जो कमरे से निकल के अपने कमरे में बंद हो गया। मोटा हाथी, काला बंदर, अफ्रीका पांडा, डरपोक चमचाकर। ऋषि इसके दरवाजे को लात मारती बोली और वापस अपने कमरे में आकर बंद बेड पर बैठती ही पाँव दबाने लगी। दरवाजे पे मारने की वजह से उसे उंगलियों में बहुत दर्द हुआ था। उसकी गालियां सुनकर कमरे में बंद आरिफ और ड्राइंग रूम में बैठे दादाजी दोनों हंस रहे थे, जबकि रिया बेचारी सर पकड़कर बैठ गई थी। सुबह से स्कूल ऋषि के आते ही किसी कोने में मुंह छुपा के बैठ जाता था। घर तो घर, पड़ोसियों को भी पता चल जाता था कि ऋषि मैडम तशरीफ ला चुकी हैं। सॉरी, रात खाना खाने के बाद जब ऋषि कमरे में आई तो हैरान रह गई। इसके पूरे कमरे में गुब्बारे लगे हुए थे जिन पे सॉरी लिखा था, और बेड के दरमियान गुलाबी रंग की शीट में बहुत ही खूबसूरत सा पैकेट पड़ा था जिसमें कोई गिफ्ट पैक था शायद। इस पे भी सॉरी ऋषि लिखा हुआ था। सॉरी यार, तुम्हें बहुत तंग करता हूँ ना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आरिफ ने सामने आते ही कान पकड़ कर कहा तो ऋषि बेहोश होते होते बच्ची के आरिफ, और माफ़ी, वो भी इतने अच्छे अंदाज में। इस ओके, ऋषि ने मुस्कुरा कर कहा तो आरिफ दिल ही दिल में बहुत हंसा। अच्छा गिफ्ट तो देखो, मैं बहुत प्यारी चीज़ तुम्हारे लिए ली है, आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा तो ऋषि जल्दी से बेड पर बैठी और गिफ्ट गोद में रख कर खोलने लगी। आह मामा जी! जैसे ही ऋषि ने गिफ्ट खोला, एक मोटा सा चूहा छलांग लगाकर ऋषि की गोद में आया। चीख मारती ऋषि बेड से दूसरी तरफ कूदी, जबकि चूहा भी उसकी मुरादों को जगाने वाली चीख सुनकर कुछ पल तो बहरा हो गया, मगर होश आते ही बेड के नीचे भाग गया। ऋषि की हालत देखकर आरिफ हंस कर लोटपोट हो गया। क्या हुआ ऋषि? ऋषि की चीख सुनकर आजिब भाग के इसके कमरे में आया और परेशानी से पूछा। बाकी सब भी भाग के आए कि पता नहीं कौन सी आफत आन पड़ी है, मगर सब भूल गए थे कि ऋषि और आरिफ से बड़ी कौन सी आफत ने और आना है। भाई चूहा! ऋषि ने रोते हुए बेड के नीचे हाथ से इशारा किया, जबकि आरिफ वहाँ आसिफ को देखकर गायब हो चुका था। हद हो गई है, एक पल सुकून नहीं है यहाँ। लोग घर आते हैं कि सुकून से सो सकें, जबकि मुझे घर आते ही डर लगता है चिड़ियाघर में आ गया हूँ। शाहजेब जो पूरी रात दर्द की वजह से सो ना सका, अभी दवा लेके सोया था, मगर ऋषि की चीख पे आँख खुल गई और वो भी भागकर बाहर आया, मगर सामने की हालत देखकर गुस्से से कहता कमरे में चला गया, और गुस्से का इजहार वो जोर से दरवाज़ा बंद करके किया तो रिया ने दुख से देखा वो बेचारा कल से नहीं सोया था। अब इनकी आफत की मेहरबानी से आज भी उसने झाँक कर ही रात गुजारनी थी। लो, मर गया है ये अब। आजिब चूहे को मार के बाहर फेंक आया, जबकि ऋषि अभी भी शू शू करके रो रही थी, और रोते रोते दादाजी को आरिफ की सारी कारस्तानी सुनाई तो दादाजी ने उससे वादा किया कि आरिफ को सज़ा मिलेगी, जबकि रिया बस अफसोस करके रह गई। सब अपने अपने कमरों में चले गए तो ऋषि थोड़ी देर बेड के दरमियान
डर के बैठी रही, मगर कुछ ही देर में इसका डर खत्म हुआ और अंदर की आफत ने अंगड़ाई ली तो वो शरारत से मुस्कुराते सारे गुब्बारे बेड पर रखने लगी। फिर दरमियान में बैठते ही उसने 4 गुब्बारों को दोनों हाथ में दबोच कर फोड़ा। ठा की आवाज़ पे बाहर बैठ के लैपटॉप पे काम करता आजिब उछल गया, जबकि ऋषि सदमे में बैठी सब समझने की कोशिश कर रही थी। ऋषि, तुम ठीक हो? आजिब ने दरवाज़ा खोलते कहा, मगर बाकी के लफ्ज़ मुंह में ही रह गए। बेड के दरमियान बैठी उस अजीब मखलूक को कुछ भी कहा जा सकता था सिवाय ऋषि के, क्योंकि आरिफ ने बुखारों में गुलाबी रंग भरा था। उसे पता था ऋषि को गुब्बारे फोड़ना बहुत पसंद था। ऋषि, रिया, बाबा और दादाजी जो ठा की आवाज़ सुनकर आए थे, सामने की हालत देख के दादाजी ने बहुत मुश्किल हंसी रोकी। ऋषि के हाथ, मुंह, कपड़े, बाल और बेड शीट सब गुलाबी हुए थे और वो बेड के दरमियान बैठी रोती शक्ल बना के सबको देख रही थी। शाहजेब ने गुस्से से दरवाज़ा खोला और घर से ही निकल गया। रिया अफसोस से उसे देखती रह गई। आरिफ और ऋषि शुरू से ही लड़ते थे, मगर ये रंगीले बनने का शौक पहली बार हुआ था दोनों को। इन दोनों की हरकत देखकर अब तो आजिब भी सर पकड़ के बैठ गया था, जबकि ठा की आवाज़ पे कमरे में बैठा आरिफ ऋषि की गुलाबी सूरत तस्वर करके हंसी से लूट-फूट हो रहा था। पूरी बोनी लग रही होगी। हा 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 हा। सुबह सुबह आरिफ ने आराम से दरवाज़ा खोल के देखा तो सामने कोई ना था। शुक्र अदा करता वो किचन में आया जहाँ रिया नाश्ता बना रही थी। अस्सलाम वालेकुम रियानी। आरिफ कुर्सी पीछे करके बैठ गया। वालेकुम अस्सलाम। रिया ने एक नज़र इसको देखा और दोबारा काम में मसरूफ़ हो गई। आनी, आप नाराज़ हैं मुझसे? आरिफ ने सर झुकाते नाश्ता से पूछा। तुम्हें और ऋषि को मौका दूसरों की नाराज़गी की फिक्र होती है? रिया ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और रूखे अंदाज में कहा, मगर सामने आरिफ था। जी जी आनी, मुझे तो बहुत फिक्र होती है, बाकी उस चमगादड़ का नहीं पता। आरिफ मासूम शक्ल बनाकर बोला तो रिया सर झटकती रह गई कि पता नहीं वो दिन कब आएगा जब इसके बच्चे इसकी नाराज़गी को सीरियस लेंगे। अच्छा ना आनी, अब नाराज़ तो ना हो, नाश्ता जल्दी दे दे, मेरा आज टेस्ट है, अभी मैंने शावर भी लेना है। आरिफ मुंह बना के बोला। तुम तैयार होके क्यों नहीं आए? रिया ने एक नज़र उसको देखा और गुस्से से कहा, वो रात ऋषि का कमरा सजाता रहा तो खाना नहीं खाया था, अब भूख बहुत जोर की लगी है। आरिफ ने मासूम सी शक्ल बनाकर पेट दबाते कहा, जबकि आंखों में साफ शरारत दिखाई दे रही थी। इसकी एक्टिंग पर रिया ने बमुश्किल हंसी रोकी। आरबे पुत्र, बड़ी गलत टाइम पंगा ले बैठा है। हुन वेख मैं कर दी किया। ऋषि शावर लेकर आईने में खुद को गौर से देख रही थी, कहीं रंग लगा ना बच गया हो। रात से अब तक वो तीसरी दफ़ा शावर ले रही थी। अच्छी तरह तसल्ली करती स्टॉलर उठाकर बालों को कवर किया और अपनी मतलूबा चीज़ें बैग की पॉकेट में रख कर बैग पहनती वो बाहर आई। दोनों तरफ अच्छी तरह से जायज़ा लिया, किसी ने इसको नहीं देखा था तो वो सीधा किचन में आई जहां आरिफ नाश्ता कर रहा था। इसको देखते ही चौंक गया, मगर ऋषि ने कोई बात ना की बल्कि चुपचाप नाश्ता करने लगी और यही बात आरिफ और रिया को हैरान कर गई। मैंने एक फ़ैसला किया है। रिया ने इन दोनों को चुपचाप नाश्ता करते देखा तो बोली, कौन सा फ़ैसला? ऋषि ने पूछा। अगले महीने हम आजिब और ज़री की शादी कर रहे हैं। आज तुम्हें भी छुट्टियां हो जाएंगी तो वापस आके अपना सामान पैक करो, तुम पप्पू के घर जा रही हो। रिया ने आराम से ऋषि के सर पर बम फोड़ा। लेकिन मामा, भैया की शादी है, यहाँ भी काम होंगे, मैं कैसे जा सकती हूँ? ऋषि ने रोनी सूरत बना के कहा तो आरिफ ने भी सर हिलाया। बेशक वो जितना मर्जी लड़ता ऋषि से, मगर इसका भाई और दोस्त भी तो था और ऋषि के जाने से घर में रौनक ही कहाँ रहनी थी। कह तो ऐसे रही हो जैसे सारे काम तुमने ही करने हैं। चुपचाप सामान पैक करो, मैं कुछ नहीं सुनूंगी तुम्हारी, इसीलिए भेज रही हूँ ताकि मैं शादी के काम देख सकूँ। मैं शादी के दिनों में तुम दोनों का कोई तमाशा नहीं चाहती। और काम की फिक्र ना करो, मैंने बरीरा को बुला लिया है, वह मेरी मदद कर देगी। बरीरा ऋषि और आरिफ के मामू की बेटी थी, जिससे इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। वजह बरीरा का रूखा रवैया था। आनी, अब हम नहीं लड़ते।
आरिफ ने कहा तो ऋषि ने भी सर हिलाया। मैं कैसे मान लूँ ये? रिया दोनों को देखते हुए बोली। रिया बहन, मैं नहीं लड़ती, ये इस आरबी के अंदर का जिन इसको सुकून से नहीं बैठने देता। ऋषि को जब कोई बात समझ ना आई तो सारा इल्ज़ाम आरिफ पे लगा दिया। मैं कब लड़ा? तुम्हारी ये भटकती हुई आत्मा को कहीं चैन नहीं है, हर वक्त उल्लू की तरह पूरे घर का चक्कर काटती रहती हो, ना खुद में सुकून है ना दूसरों को करने देती हो। आरिफ ने भी फौरन हिसाब बराबर किया। बस ये तो तय है, चाहे दुनिया बदल जाए मगर तुम दोनों नहीं बदल सकते। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। और ऋषि, ये क्या तुम नाम बिगाड़ती हो? बड़ा है तुमसे, खबरदार जो आज के बाद ऐसे नाम लिया तो। ऋषि का किरदार ऐसा है कि उसमें मैंने ये ऐड कर दिया, आप लोग किसी नाम ना बिगाड़ना। नावल पढ़ के। अच्छा। रिया ने दोनों को डांटा तो दोनों खामोश हो गए। अच्छा रिया, भेज दे इसको, कुछ दिन सुकून होगा। आरिफ नाश्ता ख़त्म करता उठ के बोला और कमरे की तरफ दौड़ लगा दी, जबकि ऋषि ने वहीं बैठे बैठे पास पड़ा चम्मच उठा के उसकी तरफ उछाला, जो सीधा जाके आरिफ की कमर पर लगा, जिसकी वजह से उसके मुंह से बेख्तियार आह निकली। रिया के घूरने पर ऋषि सीधी बैठ गई। वैसे रिया बहन, एक बात तो बताएं। ऋषि ने नाश्ता छोड़कर रिया को देखते हुए कहा तो रिया भी सवालिया नज़रों से तो देखने लगी। हाँ बोलो। बर्तन सिंक में रखते रिया ने कहा। ये कुत्ते की दुम क्या स्ट्रेट से चेक की किसी ने सीधी करने के लिए? ऋषि ने गाल पे उंगली रखते सोचने वाले अंदाज में पूछा, मगर रिया को जूता उतारते देखकर कमरे में भाग गई। या अल्लाह, क्या करूं मैं इनका? रिया बस सर अफसोस में हिलाती रह गई। अब आएगा मज़ा। ऋषि चुपके से आरिफ के कमरे में आई तो वो वॉशरूम में था, जहाँ पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। ऋषि ने अपना काम मुकम्मल किया और सुकून से बाहर आ गई। ओके रिया बहन, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। टाइम देखते ही ऋषि घर से निकल गई। आज इसका लास्ट डे था कॉलेज में। हु आरिफ अपने आप में मगन बाहर आया और आईने के सामने आती ही जेल लगाकर बाल ब्रश करने लगा। बाल ब्रश करके परफ्यूम की, खुद पे स्प्रे की और शूज़ पहनने लगा। मगर ये क्या? चप्पल इसके पाँव से अलग होने से इनकारी थे। बार बार कोशिश करने पे भी वो चप्पल ना उतारे तो अरब को शदीद गुस्सा आया और समझ गया कि वो आतफ सुबह सुबह इतनी मासूम क्यों बनी हुई थी, जबकि ये समझा कि वो बदल गई है, जो इसकी भूल थी। बेबसी से उसने हाथ बेड पर अटका कर शीशे में देखा, मगर ये क्या? उसके बाल बिल्कुल कार्टून की बालों की तरह ऊपर को उठे थे, जैसे कोई लोहे की तारों को सीधा खड़ा कर देता है। उसने बहुत कोशिश की मगर बाल भी अपनी जिद की पक्के थे, हिले ही नहीं अपनी जगह से। ऋषि का नाम दांतों में पीसता वो गुस्से से बाहर आया। अरे ये क्या है? तुम ये चप्पल पहन कर जानी जाओगे और ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? इसके बाहर आते ही आसिफ ने उसको टोका, जो अभी वॉक से वापस आया था। भाई ऋषि, आरिफ ने रोती शक्ल बनाकर कहा तो आसिफ ने नासमझी से उसे देखा तो आरिफ ने अपना साथ हुआ जुल्म बताया, जिस पे नाश्ता करते दादाजी ने कहका लगाया और आसिफ भी हंसने लगा, जबकि रिया का दिल किया अपना सर दीवार में दे मारे इस आफत जबकि रिया का दिल किया या अपना सर दीवार में मार दे या इस आफत का। असल में जब आरिफ शावर लेने गया था तो ऋषि ने इसके कमरे में आते ही वॉशरूम के दरवाजे के बाहर पड़े चप्पल में गोंद की बोतल डाल दी, जो नज़र नहीं आ रही थी। जब वो अपना काम करके जा रही थी तो बाकी की बची गोंद उसने जेल की बोतल में डाल दी थी, जिससे आरिफ के सारे बाल अकड़ गए और जूते पाँव से चिपक गए। इसकी हालत देखकर दादाजी आसिफ की हंसी नहीं रुक रही थी और वो पूरा कार्टून लग रहा था। आसिफ बस करो और डॉक्टर के पास लेकर जाओ, इसको पता नहीं कैसी चीज़ डाली है इस पागल ने, कहीं नुकसान ना पहुंचाए ज़्यादा। वो तो है ही अक्ल से पैदल, आने दो इसको, आज ही भेजती हूँ पप्पू के घर। रिया ने आसिफ को डांटते हुए कहा तो वो जल्दी से आरिफ को लेता हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल आते ही डॉक्टर ने इसके पाँव चेक किए, फिर एक दरमियाने साइज के टब में नीम गर्म पानी डालकर इसमें कुछ
ड्रॉप्स डाले और आरब को आधा घंटा पाँव इसमें रखने का कहा। आधे घंटे के बाद जब पाँव चप्पल से अलग हुए तो डॉक्टर ने एक शैम्पू लिख कर दिया जिससे बाल में से गोंद बगैर नुकसान पहुंचाए निकल जाएगी। आइंदा ऐसी खतरनाक बंदे से बना के रखिएगा। इस दवा जो जूतों में डाली है ये ना हो अगली दफ़ा गले में डाल दी जाए। इसका हल ऑपरेशन है जिसमें बहुत दर्द होता है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए आरब की हालत देखकर मशवरा दिया, क्योंकि इसकी हालत साफ बता रही थी कि ये सब गलती से तो हुआ नहीं जिस पे आरब कोई बहाना बनाता। ऑपरेशन का नाम सुनते ही आरब ने झुरझुरी ली और शुक्रिया कहता जल्दी जल्दी आसिफ के पीछे बाहर आ गया, जहां आसिफ डॉक्टर का बताया हुआ शैम्पू ले रहा था। शुक्र है यार छुट्टियां हुई, कुछ दिन आराम करूंगी मैं भी, ऋषि ने कॉलेज से बाहर आते हरम से कहा आज ही इन्हें कॉलेज से 1 माह की छुट्टियां हुई थी, क्योंकि 1 माह बाद इनके पेपर्स थे। हाँ यार बस कुछ दिन जान छूटी। सुबह सुबह जागने से हरम ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। वह चलो चलो दूर से गुब्बारे वाले को देखकर ऋषि ने हरम को साथ खींचते इसकी तरफ दौड़ लगाई, जबकि वो अरे अरे करती रह गई। ये भी दो भाई और ये सारे भी। ऋषि ने रंग बिरंगे गुब्बारे एक साइड पे करते कहा तो दुकानदार ने उसे घूर कर देखा, जो पूरी दुकान उलट पुलट कर रख दिया था। और ये पटाखे भी दो और लाइटर भी। ऋषि ने इसकी घूरी नजरअंदाज करते हुए सारी मतलूबा चीज़ें सामने रखते कहा। 500 की चीज़ें लेती ऋषि खुशी खुशी वापस मुड़ी तो हरम उसे घूर कर रह गई। ये सब क्या है ऋषि, अब क्या करने जा रही हो? हरम ने गुस्से से पूछा तो ऋषि चीज़ें बैग में डालती शरारती सा मुस्कुराई। छुट्टियाँ एंजॉय। हरम को ज़बान दिखाते वो हंसने लगी तो हरम ने अफसोस से सर झटका और रक्षे को रोकती इसमें बैठी। ऋषि भी इसके साथ बैठ गई। इनके बैठती ड्राइवर ने रक्षा चलाया। मैं सोच रही हूँ हम मिलकर पेपर्स की तैयारी करें। हरम ऋषि के हाथ से पिन लेती घूर कर बोली, जो रक्षे में बैठती ही दरवाजे पे पिन से लतीफ़े लिख रही थी। इसके पिन लेती ऋषि ने एक नज़र पिन को देखा और मुंह बसूरने लगी। उसकी चालाकी समझती हरम ने पिन रक्षे से बाहर फेंक दिया। इसके पिन फेंकती ही ऋषि ने सदमे से उसे देखा, जो इसका 5 रुपए का नुकसान कर चुकी थी। हरम चुई। ऋषि ने दोनों हाथों से इसके बाल पकड़े तो हरम इस अचानक आफत पर घबरा गई और मुश्किल से बाल छुड़ाकर इस आफत से दूर हुई। जंगली बिल्ली। दूर होते ही हरम ने बाल ठीक करते घूर कर कहा तो ऋषि ने फिर इस हाथ इसकी तरफ बढ़ाए। इससे पहले कि ऋषि इसके दोबारा बाल पकड़ती रक्षा एक झटके से रुका तो दोनों ने हैरान होके सामने देखा, मगर सामने देखती दोनों को शॉक लगा। ये इनके घर का रास्ता नहीं था। लड़ते हुए इनको मालूम ही ना हुआ कि रक्षे वाला इनको कहाँ लेकर जा रहा है। तो तुम ड्राइवर को देखती ही दोनों की आंखें बाहर निकली। ये वही रक्षे वो ड्राइवर था जिसे वो चकमा देकर भाग गई थी, मगर आज फंस गई थी क्योंकि उसने पहले मास्क पहना हुआ था तो दोनों उसे पहचान ही ना सकी थी। भाई वो ना हम आज आपके पैसे देने वाले थे। हरम ने घबरा कर मुश्किल लफ्ज़ अदा किए तो ऋषि ने हैरानी से उसे देखा, जो इतना डर रही थी, जबकि ऋषि का दिमाग 140 की स्पीड से कोई नई शरारत ढूंढने निकला था। आप लोगों को शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए? ड्राइवर ने गुस्से से कहा तो हरम रोने लगी। सॉरी भाई, असल में हम पैसे कॉलेज भूल आए थे। रक्षे में बैठते ही हमें ये बात मालूम हुई तो डर गए कि कहीं आप कुछ कहो ना तो हम पैसे दिए बगैर भाग गई, मगर इरादा पैसे वापस करने का था। ड्राइवर के गुस्सा करने पर ऋषि ने जैसी बात करने के लिए मुंह खोला, हरम ने दबाकर इसके मुंह पर हाथ रखा और एक ही सांस में बोलती गई, जबकि ऋषि गुस्से से घूरती खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। हरम ने जल्दी से ऋषि को बाहर निकाला और बैग से पैसे निकालने लगी। ऋषि ने घूर कर उसे देखा और उसके दिमाग में शरारत क्लिक हुई। हरम पैसे देकर मुड़ी ही ऋषि ने इसका हाथ पकड़कर पीछे खींचा। ठा ठा ठा। ऋषि ने सारे पटाखे लाइटर से आग लगाकर रिक्शे में फेंके और हरम का हाथ पकड़ते ही दौड़ लगा दी। ड्राइवर उछल कर रिक्शे की दूसरी तरफ से नीचे गिरा। इसकी गिरती हुई ऋषि हंसते हुए पीछे देखती जबान चिढ़ाने लगी, जबकि हरम की तो सांस ही रुक गई थी। वो ऋषि के साथ
खिंचती जा रही थी। रुको अभी बताता हूँ। ड्राइवर जमीन से उठता गुस्से से रिक्शा स्टार्ट करने लगा, मगर ये क्या, रिक्शे का टायर पंचर था। जब हरम किराया दे रही थी तब ऋषि ने बालों से पिन निकालकर टायर से हवा निकाल दी थी। हाँ 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 हाँ, अब जो पैसे लिए हैं ना, पंचर लगवा लेना, काले मोटे बांदर। ऋषि भागते हुए पीछे देख के बोली। सामने से आते शख्स से टकराती जोरदार चीख मारती जमीन पर गिरी।